जब भी हम कोई जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने जाते हैं, देयर इज टू वैल्यूज रिटन, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। लाइक बल्ब पे लिखा होगा इट इज 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई पे यूज करेंगे, देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर इन टाइम or electrical power developed will be 100 watt. That is not always true that it is always going to give 100 watt. 100 watt is the rated power, not the actual power. So if the appliance or bulb or heater जो भी है is used at rated voltage, which is mentioned like 220 in India, the power produced or power developed is equal to rated power. But the voltage supply is not always 220, that keeps on fluctuating. Power developed is equal to rated power. So rated power, rated voltage is not necessarily a rated value, not necessarily the actual voltage that is being supplied at home, and that is also not the same power which is being received all the time. So that means the power that we are getting is different. So we have to find the new from this value, the quantity that is constant जो हम calculate कर सकते हैं, because power का formula होता है V square by R. So from this rated values of power and voltage, we can calculate resistance. Resistance of any electrical appliance can be calculated by the rated power and rated voltage. So it will be VR square by PR, right? Yes, sir. Yeah. अब ये रेटेड जो रेजिस्टेंस है, वैसे तो थोड़ी देर यूज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बट वी अज्यूम दैट टेम्परेचर रिमेन सेम, डज नॉट चेंज मच. सो वी कैन अज्यूम दैट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. किसी भी अप्लायंस को यूज करने पे ड्यूरिंग द यूज there will be some heat developed, and because of heat there will be rise in temperature, or rise in temperature will also cause change in resistivity or change in resistance. But we can assume that for that duration, when the current is passed, heat is not that much that it can change the temperature. So we can assume through this process that resistance is constant. So एक information हमें rated power और rated voltage से मिलती है, resistance बल्ब की या हीटर की या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की. सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हम इससे निकालते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द maximum current which can pass. Maximum current is also called as rated current. इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इससे ज्यादा करंट पास नहीं होनी चाहिए. अगर इससे ज्यादा करंट पास होगी तो बिकॉज ऑफ द हीट, because of the power developed, the fuse will be burned or the electrical appliances will get damaged. So this is the maximum value of current which can safely pass without blowing the fuse. Maximum value of current which can safely pass. Which can safely pass without blowing off the fuse. तो या तो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसके साथ फ्यूज लगा होता है, या तो फ्यूज बर्न आउट हो जाएगा, और अगर ये बल्ब है तो bulb itself will be burned and it will get fused. Maximum current or rated current that can pass through any appliance, through any bulb without blowing a fuse, because P is equal to VI. That was the formula for power. I will be equal to PR by VR. This is the rated current or max current that can pass. इससे ज़्यादा करंट अगर पास होगी तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, and that circuit will be broken. When if it is in series, अगर उसमें एक भी बल्ब फ्यूज हो गया, then the whole circuit will be switched off because current circuit is not complete anymore.
राइट। तो हम फ्यूज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे अलग से, व्हाट इज फ्यूज एंड हाउ इट इज यूज्ड, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द रेडियस ऑफ द फ्यूज वायर। सो जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे होते हैं तो एक्चुअल पावर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, दैट विल डिपेंड अपॉन द एक्चुअल सप्लाई ऑफ वोल्टेज and its resistance. Actual power developed in a resistor or in a bulb or in an appliance, that will be depending upon the supply voltage. So suppose supply voltage at that time is V, rated is VR, VR का मतलब हो गया 220 और suppose घर में आ रही है 200 वोल्ट सप्लाई। सो V स्क्वायर और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम उसकी रेटेड वैल्यू से कैलकुलेट कर लेंगे, VR स्क्वायर बाई PR, substitute VR square by PR. So power is V by VR square times PR. P is the actual power developed, PR is the rated power. Actual power produced is equal to actual voltage. V is actual voltage or V is the supply voltage at that time. And VR is rated voltage. Right, so actual power किसी भी सर्किट में डेवलप होगी that is proportional to rated power, but it is but it is not equal to the rated power. Rated power के proportional है but same नहीं है, वो depend करेगा उस टाइम पर कितनी सप्लाई आ रही है, according to that it will change. So जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, suppose we have two different bulbs, other three different bulbs, suppose we have three different bulbs and we connected them in series, 20 watt, 30 watt and 60 watt. इन तीनों में सबसे ज्यादा पावर, पावर का मतलब इंटेंसिटी, जिस बल्ब में जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतनी ही ज्यादा राइट, जिस बल्ब में जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी एंड मोर इट विल बी ग्लोइंग. सो लाइक इन दिस केस 20 वॉट, 30 वॉट, 60 वॉट, कैसे पता करेंगे कौन सा वाला बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा है, कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा? यस, एनीवन? Which bulb will have the maximum glow, maximum brightness, maximum intensity? So the 60 watt. Neeti, 60 watt. Right? It should be common sense. $60 watt, na? Yes. Yes, sir, 60 watt. Right. Dishita, it should be 60 watt. Dishita, which of the three bulbs in series will have maximum glow? Dishita, I asked you. बेटा मेरी आवाज आ रही है? Dishita, are you getting my voice? Anurag, which bulb will have the maximum glow? Anurag? Anurag? Which bulb will have maximum glow out of these three if they connected in series? Anurag? हो गया भाई, रिस्पॉन्ड तो करो. Manav, according to you, which bulb should have maximum glow? Sir, I think 20 watt. You think 20 watt? Okay, very good.
Why you think 20 watt? Sir, it's wrong, right? Are you guessing or do you have the logic? सर I square RT होता है राइट, और W by T भी होता है पावर का, तो 20 को ही मैक्सिमम होना चाहिए. ये तो लॉजिक नहीं है. देखो पावर के कुछ तीन फॉर्मूले किए थे हमने, v स्क्वायर बाय r, I square r और v into I. The actual power developed. These three formulas were for the power. अगर ये सीरीज में है, so what is same in each of them? Current. If current is same in each resistor, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P is equal to I square R. Because current is same, तो I square तो same है सभी में. Power is directly proportional to resistance. और resistance का फॉर्मूला in terms of the rated power, we just saw that resistance is VR squared divided by PR. Resistance is inversely proportional to the rated power. So actual power जो develop होगी series में, that is inversely proportional to the rated power, which means power उसमें ज्यादा होगी जिसका resistance ज्यादा है, और resistance उसका ज्यादा होगा जिसमें rated power सबसे कम. By using these two relation, power is directly proportional to R, क्योंकि हम इसको तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट v स्क्वायर r यूज करेंगे तो v1 v2 v3 we have to calculate, it is different. So we need to use I square R because I same है सभी में, इसलिए resistance के directly proportional and resistance is inversely proportional to the rated power. सीरीज में जिसकी rated power कम है उसमें actual power ज्यादा produce होगी, which means 20 watt has the maximum glow, then 30 watt, and then 60 watt. Neeti, you understood this? Neeti? Yes, sir. Series में current same, power is proportional to resistance, and resistance is inversely proportional to the rated power. That is why. Yes, sir. So series में हम अगर rated power, series में अगर हम equivalent power का formula calculate करें, so equivalent power in series, like suppose in 3 bulbs को हमने connect किया in series, अगर हम 3 की जगह पे केवल एक बल्ब यूज करना चाहें, then what should have been that power of that single bulb, so that intensity or energy produced is exactly same. पहले की पावर है P1, दूसरे की पावर P2, तीसरे की P3. Or maybe we have 3 different heaters. If we connect them in series, तो रूम में कितनी हीट मिलेगी per unit time, that equivalent power we have to find. So power equivalent, the resistances of these three appliances is suppose R1, R2, R3. Equivalent resistance is R equivalent and equivalent power is P equivalent. So since we have the formula for equivalent resistance of this combination in series, R equivalent is R1 plus R2 plus R3. और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं in terms of rated voltage and rated power. R is equal to VR square upon P. So this is P equivalent, VR square by P1 for the first one, VR square by P2 for the second one, and VR square by P3 for the third one. VR square कट जाएगा. So series में लगाने पे equivalent power का फॉर्मूला आ गया 1 by P equivalent is 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3. Tanishka? Yes, sir. How are you? Fine, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay. You missed last class. हाँ, 3 resistors को या 3 heaters को, 3 bulb को series में लगाने पर their equivalent power reduces. So अगर ये 20, 30 और 60 वाला जैसे पिछला केस था, these 3 bulbs if we are connecting them in series,
सो इससे जो हमें ओवरऑल पावर मिल रही है वो कितने वॉट के बल्ब के इक्वल मिल रही है। मतलब हमने यूज तो किए 3 डिफरेंट बल्ब, वी एक्सपेक्ट कि इसमें बहुत ज्यादा हमें और रोशनी मिलनी चाहिए, but in this case the equivalent power that we will get 1 by 20 plus 1 by 30 plus 1 by 60 is 3 plus 2 plus 1, so 6 by 60 which is 1 by 10। इक्विवेलेंट पावर आ गया 10 वॉट के बराबर। इन तीनों को अगर हम सीरीज में लगा देते हैं तो इक्विवेलेंट पावर 10 वॉट के इक्वल होगा, विच मींस पावर इज रिड्यूस्ड। सीरीज में लगाने पे पावर कम हो जाती है फॉर एनी रेजिस्टर, फॉर एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अगर पावर कम, जैसे हीटर की केस में देखते हैं, अगर हीटर है और हीटर हमने सीरीज में लगा दिया तो ओवरऑल जो और हीट मिलेगी हमें दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से, दैट विल बी रिड्यूस्ड, इसलिए वी शुड नॉट कनेक्ट देम इन सीरीज। सर एक क्वेश्चन था। बोलो बेटा। सर जैसे वो एक दिवाली वाली भी तो होती है लाइट, वो तो सर सीरीज में ही हाँ, तो होती है उसको सारी। सीरीज में लगाते हैं ना। पहले पहले क्या करते थे, मतलब जब मैं छोटा था, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, हम लोग मार्केट से बल्ब ले आते, जब चाइनीज वाली मार्केट में नहीं आती थी, चाइना वाज नॉट प्रोवाइडिंग दी, तो तब हम कुछ 100 बल्ब ले आते थे, वायर ले आते थे, एक मास्टर बल्ब ले आते थे, वन आफ्टर अनदर। एक ही अगर सीरीज में कनेक्ट करते जाओ तो उसकी रोशनी कम हो जाती थी। जितने ज्यादा आपने बल्ब लगा दिए उतनी ही कम वहां पर रोशनी हो जाती थी। दैट वाज दी दैट वाज दी ड्रॉबैक। अब जो चाइनीज वाली आती है उसमें एक वायर तो पूरे पूरे इस पे लड़ी में होता है, एंड द अदर वन इज कनेक्टिंग, सो वो सारे के सारे पैरेलल में होते हैं। तो दिवाली वाली जो झालर होती थी पहले लड़ी, उसमें जितने ज्यादा बल्ब यूज करेंगे, यानी जितने ज्यादा हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए बल्ब, उतनी ही उसकी रोशनी कम होती जाती थी, उतनी ही उसकी पावर कम हो जाती है। राइट, ठीक है ये सर। कह रहा था शायद आप रुद्रांश, यस सर, यही बोल रहे थे आप या कुछ और कहना चाह रहे थे? यही बोल रहा था सर, यही चीज। हाँ, वेरी गुड। अभी जो आते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, बिकॉज सीरीज में कनेक्ट करने पे रोशनी कम होती जाएगी, जितने ज्यादा बल्ब लगाओगे उतनी कम रोशनी होगी। नेक्स्ट इज इन पैरेलल। सो जब हम बल्ब को, लेट्स से those 3 bulbs, if we connect them in parallel, 20 watt, 30 watt and 60 watt, if these 3 bulbs are connected now in parallel, इसमें रोशनी सबसे ज्यादा किसमें प्रोड्यूस होगी, बिकॉज नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में पावर के लिए फॉर्मूला यूज होगा V स्क्वायर बाई आर। फॉर्मूला तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट करंट के लिए फिर हमें करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, I1 I2 I3 सेपरेटली, दोनों तीनों में अलग अलग। But we know that in parallel potential is constant, V is constant, so हम पावर को यूज कर लेंगे V स्क्वायर बाई आर। सो पावर का फॉर्मूला था V स्क्वायर बाई आर। सो इन पैरेलल power is inversely proportional to the resistance of wire, and resistance of wire formula is R is equal to VR square by PR. Substitute here. So since the resistance is inversely proportional to rated power, so power developed will be directly proportional to the rated power. Parallel में जिसकी rated power ज्यादा, उसमें actual power भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। एंड इन द केस ऑफ सीरीज, जिसकी रेटेड पावर कम, उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर 60 watt has the maximum glow, 60 watt bulb, then 30 watt, and then 20 watt. This is the order of the glow or intensity of the light produced, brightness of the light produced by this bulb. सीरीज में लगाने पे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा मींस रेटेड पावर कम, so 20 watt has the maximum glow. In parallel, जिसकी रेजिस्टेंस कम है, जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसमें मैक्सिमम पावर होगा, एंड दैट मींस जिसकी रेटेड पावर सबसे ज्यादा है। पैरेलल में अगर हम इक्विवेलेंट पावर निकालें, in the case of parallel, if you have to calculate the equivalent power of combination of 3 bulbs, so first one has power P1, second has power P2, third has power P3. P1, P2, P3, हमें इन तीनों का इक्विवेलेंट बताना है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर ऑफ दैट।
कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में कनेक्ट करने पे पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 और कॉम्बिनेशन का आ गया R इक्विवेलेंट। मल्टीप्लाई विद VR स्क्वायर पूरे में। VR square by R equivalent is VR square by R1 plus VR square by R2 plus VR square by R3. V square by R is power, so this becomes P equivalent is equal to P1 plus P2 plus P3. पैरेलल में कनेक्ट करने पे पावर्स ऐड हो जाएंगे। So if is 20, 30, 60 तीनों को अगर हमने अलग अलग पैरेलल में यूज किया then it is same as one single bulb of 110 watt. If you want to replace this by one single bulb, then we have to use 110 watt bulb, then it will produce exactly same amount of light. Right? Yes, sir. सीरीज में लगाने पे पावर कम हो जाती है और पैरेलल में लगाने पे पावर बढ़ जाती है. That is the idea of right. Yes, sir. I think schools are planning to start. सर वो हरियाणा बोर्ड का निकला था, हाँ कुछ न्यूज तो आई है शायद. I think बट वो सर हरियाणा बोर्ड का था, सीबीएसई का नहीं था। और सर इंस्टीट्यूट खुल गया? क्या फिर से बोलो. सर इंस्टीट्यूट खुल गया? इंस्टीट्यूट तो बेटा कब का खुला है, हम तो इंस्टीट्यूट ही आते हैं. आपके आने की बारी है. सर हमें कब से आना है? हाँ हमें कब से आना है? अभी देखते हैं, नोटिफिकेशन आ जाए ऑफिशियल नोटिस. अगस्त से तो कंफर्म है, उसके पहले इफ पॉसिबल देन वी विल स्टार्ट, अदरवाइज अगस्त से तो 100% कंफर्म है. अभी की क्या न्यूज़ है दैट वी हैव टू सी. सर अगस्त से ट्यूशन का कंफर्म है या फिर स्कूल का कंफर्म है? हाँ बेटा, अगस्त से इंस्टीट्यूट खुलने का कंफर्म है या फिर स्कूल खुलने का कंफर्म है? स्कूल खुलने का अभी कुछ आज न्यूज आई है. लेट्स सी द ऑफिशियल नोटिस कब से स्टार्ट होता है. स्कूल खुलेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल जाएंगे with all the norms and all the SOPs. मतलब वही होगा, just it was just like the earlier we started, which will be hybrid mode. Those who want to come, they will come. Those who don't want to come, don't come. Same class will be streamed online as well. ठीक है. Yes, so equivalent power हो गया P1 plus P2 plus P3. That means पैरेलल में कनेक्ट करने पे पावर बढ़ती है, सीरीज में कनेक्ट करने पे पावर कम होती है. दैट इज वन इंफॉर्मेशन. ठीक है. इसीलिए हम घर में सारे अप्लायंसेस को पैरेलल में लगाते हैं so that their power should increase, should not reduce. In household supply, all the bulbs and all the appliances are connected in parallel. सीरीज में लगाएंगे तो एक आधा चलेगा और बाकी वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट, तो हम थोड़े से पहले इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन द पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. DC circuit power and energy consideration.
पावर ट्रांसफर थ्योरम फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, इसके पहले भी एक थी शायद, दैट इज देयर इज वन मोर. One more DPP, that was an electrical energy. Yes, DPP number 7. Rated voltage and rated power. The questions related to the rated power and rated voltage, like question number 6. A bulb of 220 volt and 110 watt is operated at 110 volt. So 220 volt is rated voltage, 110 watt is rated power. फिर 110 क्या है? Is the actual supply voltage जिस पे हम उसको यूज कर रहे हैं. The power consumed by bulb. So वैसे फॉर्मूला याद नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले हम रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज से इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. Once we have the resistance, then power will be V square by R. इसको पुट करने पे आया था V by VR square times PR. वोल्टेज कितना है? अभी अप्लाइड वोल्टेज इज 110, रेटेड वोल्टेज इज 220 and rated power is 110 watt. सॉरी, इसको 100 कर लो, ये 110 गलत लिखा है. इंटू 100 वॉट्स हो जाएगा 1/2, 1/2 स्क्वायर 1/4 इंटू 100, so that means 25 watt. जो 100 watt का बल्ब है 220 वोल्ट पे, now that will give 25 watt power only when operated at 110 volt. When operated at 110 volt, right? Yes, sir. Question number 7 is also same. Filament rated power is 500 watt, rated voltage is 115, और अभी हम उसको यूज कर रहे हैं 110 पे. परसेंटेज ड्रॉप इन आउटपुट पावर. तो पहले हम यहाँ से पावर एक्चुअल निकाल लेंगे. एक्चुअल पावर डेवलप्ड इज V by VR square times PR. Voltage supply is 110, voltage rated is 115, multiply by 500, and then we calculate the drop loss, final minus initial divided by initial into 100. Correct. Question number 8. For the given circuit, question number 8 क्या था हमने? I think we did last class. In Friday class, we did question number 8. We did question 8 last class. Did we do question number 8 last class? Please confirm. Anurag, Friday तो आप आए नहीं थे शायद. हेलो सर. हाँ क्या क्वेश्चन नंबर 8 किया था हमने लास्ट क्लास में? सर, मैं फ्राइडे को तो एब्सेंट था. हाँ, फ्राइडे एब्सेंट थे. क्यों? सर, मैं हमारी क्लास की लास्ट असेंबली थी स्कूल में, तो उसके लिए प्रिपरेशन थी. अच्छा, वेरी गुड. ठीक है, कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 10. 120 volt heater has two setting, 850 and 1250. Which one has the higher resistance?
यस बस ठीक है। तो हाँ 190 वोल्ट का अगर हीटर है उसकी दो पावर सेटिंग है 850 और 1250। रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा ध्रुव? फॉर विच केस रेजिस्टेंस इज हायर? ध्रुव बेटा ध्रुव आ गए? ध्रुव वो तो यार आवाज नहीं आ रही है। यस क्वेश्चन ये है अगर एक हीटर में दो सेटिंग है 850 और 1250 तो कौन से वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? R इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर बाई वी आर। जिसकी रेटेड पावर कम है उसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा है, सो रेजिस्टेंस ऑफ 850 वॉट इज लार्जर। क्वेश्चन नंबर 11। In a large building, there are 15 bulbs of 40 watt, 5 bulbs of 200 watt, 5 fans of 80 watt, and 1 heater of 1 kilowatt. So क्योंकि ये बिल्डिंग हाउस होल्ड सप्लाई की बात हो रही है, हाउस होल्ड सप्लाई में सारे एक पैरेलल में होते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे ऐड होके हो जाएंगे। इक्विवेलेंट पावर विल बी, इन सबको ऐड कर दो, 15 इंटू 40 प्लस 5 इंटू 100 plus 5 into 80 plus 1 into 1000. This is the total power and then total power is total voltage into current. यहाँ से current मिल जाएगी। This is the maximum current that is going to enter into the house. इसलिए main fuse में इतने का हमें एक fuse wire लगाना पड़ेगा। That is the capacity of the main fuse wire. Correct? थोड़ा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा यार, मजा नहीं आ रहा है। हाँ क्रिश सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ढंग से। क्वेश्चन समझ नहीं आया? चलो अपने घर का एग्जांपल ले लो। घर में बहुत सारे बल्ब हैं, बहुत सारे बड़े से बल्ब हैं, 100 वाट के ट्यूबलाइट्स है। मेन सप्लाई जहां से घर में कनेक्शन आता है, तो मेन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दिस इज सपोज हाउस, तो पहले एक मीटर लगता है, इलेक्ट्रिक मीटर, और मीटर के जस्ट बाद एक मेन फ्यूज लगता है। एमसीबी में एक मेन फ्यूज होता है। दैट मेन फ्यूज डिपेंड्स अपॉन कि आप घर में कितनी करंट सप्लाई कर रहे हो। अगर जितनी आपने पावर की ले रखी है सप्लाई, उसके हिसाब से वो फ्यूज डिसाइड होता है कि 25 एम्पियर का, 30 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, 16 एम्पियर का। सो इस घर में इतने अप्लायंसेस यूज होंगे, तो सारे एक टाइम पर भी अगर यूज हो जाते हैं तो मैक्सिमम पावर जो हम इस सर्किट में ड्रॉ कर रहे हैं इन योर हाउस होल्ड सर्किट, कितने हो गए? 15 इंटू 40 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 80 प्लस 1 इंटू 1000। क्यों हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं? बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में कनेक्ट करने पे पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है। समझ गया रुद्रांश? यस सर समझ गया। सर मतलब एक एक बल्ब पैरेलल में? हाँ बेटा, सर एक एक बल्ब पैरेलल में? सारे बल्ब पैरेलल में होते हैं, मतलब घर में जितने भी अप्लायंस होते हैं सारे पैरेलल में। सबको ऐड कर लो, दैट विल बी द टोटल पावर। टोटल पावर इज टोटल वोल्टेज इनटू करंट, राइट? यस सर। सो ये वोल्टेज कितना हो गया? दैट वोल्टेज इज 220। करंट हम निकालेंगे, दैट इज द मेन करंट, और पावर इज दैट टोटल पावर विच वी आर गोइंग टू यूज in the household circuit. Question number 12. A power station delivers 750 kilowatt of power at 12,000 volt to a factory through a cable of resistance 3 ohm. If electricity is delivered at 50,000 volt instead of 12,000 volt, then how much is the power wasted will be? अब ये जो है ये कॉन्सेप्ट होता है जब भी हम पावर को सप्लाई करते हैं, या पावर जनरेशन स्टेशन से किसी सिटी में या किसी फैक्ट्री तक करते हैं, देन इट इज ऑलवेज सेंट एट द हायर वोल्टेज, एज हाई एज पॉसिबल। उससे किससे क्या फायदा होगा? करंट कम हो जाएगी। करंट कम हो जाएगी तो resistance, heat loss will be less, power loss will be less, maximum power will be delivered. Got it?
यस सर। पावर स्टेशन से 750 किलोवाट की पावर आती है, अभी हमने 12,000 की जगह पे 50,000। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, दिस इज 750 किलोवाट इनटू 1000, वोल्टेज हो गया 50,000 इनटू करंट आई। फ्रॉम हियर वी विल फाइंड द करंट इन द वायर, और जो केबल उसको ले जा रही है दैट केबल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, so we will have the power wasted, the power developed in the cable, power developed power loss कहाँ पर होगी, केबल में, जो ट्रांसमिशन के लिए केबल यूज हो रही है उसके रेजिस्टेंस की वजह से पावर विल बी लॉस्ट, एंड P is equal to I square R, right? Yes, sir. Okay, very good. Next, इसमें कैलकुलेट करो कितना आएगा, P is equal to I square R, check. सर वो जो पावर स्टेशन से करंट जाता है सर, तो वो उसके डिस्टेंस पे भी इफेक्ट पड़ता होगा ना? वो डिस्टेंस में जितना वायर है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी रास्ते में जो केबल यूज करेंगे, और ज्यादा रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली दैट विल बी लॉस। वो हम रेजिस्टेंस में इंक्लूड कर लेते हैं, दैट डिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन द रेजिस्टेंस। ज्यादा डिस्टेंस पे अगर पावर सोर्स है तो उससे जो वायर केबल जो हम यूज करेंगे उसमें ज्यादा ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, सो आई स्क्वायर आर विल बी मोर। तो सर ज्यादा पावर वेस्ट होगी। और वेस्टेड विल बी आई स्क्वायर आर, आई जो करंट है, इसलिए हम जब भी पावर जनरेशन सोर्स से किसी भी वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं करंट को, so it is done as high as possible, like 20,000, 40,000, 50,000 volt. Got it? लेकिन जब यूज करना होता है तो फिर से उसको हमें ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करना पड़ता है टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो हमारे घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट तक, उसको फिर से हम स्टेप डाउन कर लेते हैं, जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, हाउ वी डू दी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। क्या आएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट्स द आंसर? 12 का आंसर 1.1 into 10 to the power 4। चेक कर लेना कैलकुलेट करके दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, 18 एंड 19। एक दोनों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। Question number 18. In experiment, a student prepares the following circuit. On pressing the key K, observation made by the students are given bulbs are identical. अगर हमने इसको क्लोज कर दिया तो क्या होगा, बल्ब 1 ग्लोज ब्राइटर, जितना पहले चल रहा था उससे ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने का मतलब उसमें करंट ज्यादा होनी चाहिए। और करंट ज्यादा क्यों होगी, why will current increase by the way, अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तो कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि साथ में एक पैरेलल में लग गया, बट उसके पैरेलल में आने से भी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया, लेकिन ये दोनों के दोनों पैरेलल में, दोनों में सेम पोटेंशियल। E by R, so it has the same potential for both of them are connected in parallel,
same potential and same resistance. So power will be V square by R. Power is V square by R, and that means it has the same power, same जितनी पहले थी उतनी अभी है. There will not be any change in the bulb 1 or bulb 2 glows brighter. Reading of meter become twice. That's correct. क्योंकि दोनों में अभी करंट सेम पास होने लगी. आई से पहले केवल एक में जा रही थी. Now it become double. Reading of voltmeter remains same. Reading of voltmeter remains same. Correct.
यस बॉस, सॉरी पेरेंट ने कुछ कॉल किया था अर्जेंटली। हाँ राइट, सो ये समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं पैरेलल और सीरीज में। ओके इस क्वेश्चन में क्या था, अगर स्विच को क्लोज भी कर देते हैं सर्किट चेंज हो रहा है लेकिन दोनों बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, दोनों में करंट सेम है, करंट सेम है तो दोनों का ग्लो सेम होगा एज बिफोर, इट विल नॉट चेंज। और करंट डबल हो गई, जो बैटरी से करंट निकली थी वो डबल हो गई क्योंकि नाउ इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, वोल्टमीटर की रीडिंग तो सेम ही रहेगी। तो ऐसे हम सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन से, अब इसमें थोड़े से ट्रिकी वाले क्वेश्चन जो है दैट इज इन दी सेकंड, जो दूसरी वर्कशीट है इसकी पावर वाली, डीसी सर्किट पावर एंड एनर्जी कंसिडरेशन। राइट, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये जे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 100 वॉट बल्ब B1, B1 100 वॉट का बल्ब है, and 260 watt bulbs B2 and B3 are 60 watt bulbs are connected to 250 volt source. W1, W2, W3 are powers of the bulb. Then we have to compare कि तीनों में से पावर किसमें सबसे ज्यादा होगी। So yes, B1, B2, B3 सबसे ज्यादा पावर किसमें होगी प्रोड्यूस, एनी आइडिया? सर B3 में। B3 में क्यों? सर लग रहा है गट फीलिंग। गट फीलिंग कुछ ना होती है, गूगल फीलिंग होती है ये। सर 1 सेकंड में कौन सा गूगल होता है? अरे मतलब हाँ ये बात सही है, इतने फास्ट तो कोई गूगल नहीं होता यार, वॉइस प्रोसेस करोगे तो भी चलो ठीक है, गट फीलिंग ही सही। बट गट फीलिंग आई क्यों B3 में सबसे ज्यादा क्यों है, वाई? सर ऑप्शंस देख के लग रहा था। ये तो बेटा सुपर नेचुरल पावर है, ये थोड़ी खतरनाक पावर है। ये आर सर क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? सर रेजिस्टेंस, नहीं सॉरी सर, रेटेड पावर। कौन बोल रहा है भाई? सक्षम, अनुराग, व्योम? सर व्योम। व्योम, हाँ ये आवाज बड़ी बिजली लग रही है। ओके, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई R। वैसे तो 250 वोल्ट का वोल्ट की अपने सप्लाई लगा रखी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R, यहाँ पे रेजिस्टेंस R, और इसमें कुछ और ऐड हो गया, सो ऑब्वियसली दिस रेजिस्टेंस इज ग्रेटर। ऊपर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस ग्रेटर देन R है दोनों का मिला के, और इसका रेजिस्टेंस है R। सो सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, आउट ऑफ दीज टू ब्रांचेस ऊपर वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस R से बड़ा है। 250 वोल्ट यहाँ अकेले इसके पास अवेलेबल है, और यहाँ ऊपर वाले में 250 वोल्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, V1 और V2 में। V1 V2 बोथ आर लेस देन 250 वोल्ट। सो सारा का सारा 250 वोल्ट अवेलेबल है B3 पे, सो B3 में सबसे ज्यादा है, दैट इज करेक्ट। अब 250 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वोल्टेज लेस, वोल्टेज लेस। 60 वॉट और 100 वॉट में किसका रेजिस्टेंस कम होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा? जिसका पावर ज्यादा है। या ऐसे समझ लो ये दोनों सीरीज में, तो करंट जा रही है, करंट सब में सेम है। जब करंट सेम होती है तो ज्यादा पावर किसमें प्रोड्यूस होता है? छोटे वाले में। सो इसका मतलब W2 विल बी ग्रेटर देन W1 व्हिच इज डी ऑप्शन। व्हाई W3 इज ग्रेटेस्ट? क्योंकि उसमें 250 वोल्ट पूरा का पूरा अवेलेबल हो रहा है फॉर द पावर जनरेशन टू द ओनली वन सिंगल बल्ब, सो V स्क्वायर बाई R। बाकी दोनों में इससे कम होगा B1 B2 के कॉम्बिनेशन में, बिकॉज द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन R। या फिर अगर वोल्टेज को डिवाइड करोगे तो 250 वोल्टेज इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। B2 B3 में कंपेयर करने के लिए, बिकॉज दे आर इन सीरीज, सीरीज में करंट सेम, करंट सेम तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब रेटेड पावर शुड बी लेस। सो इसलिए 60 वॉट वाले में ज्यादा पावर प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू 100 वॉट। आंसर विल बी डी। जी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड दे ऑल आर वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6, A, B, C are three identical bulbs. Which of the following change occurs in the brightness of bulb when switch S is closed? S को क्लोज करने पे ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा A, B और C में? What should be the effect on A? C को क्लोज करने पे
what happens to the overall resistance of the circuit? It increases or decreases? Sir, increases. Increases, क्योंकि ये पैरेलल में लगा रहा है. पैरेलल में लगाने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, पैरेलल में लगाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए करंट बढ़ जाएगी. करंट बढ़ जाएगी तो जितनी पहले थी उसके कंपैरिजन में नाउ करंट इज इंक्रीज. करंट इंक्रीज हो गई इसलिए ए में पावर इंक्रीज हो गई. सॉरी, अभी बी में हमें चेक करना है. वी हैव टू स्टिल बी की पावर का क्या सीन है. सो बिकॉज दे आर आइडेंटिकल बल्ब, पहले करंट कितनी थी इनिशियली? I1 इज इक्वल टू V बाई 2R, क्योंकि V दोनों R एंड R. न्यू रेजिस्टेंस ये हो गया R एंड R, R बाई 2, 3R बाई 2, सो V डिवाइडेड बाई 3R बाई 2. पहले करंट थी उसमें V बाई 2R, अभी जो 2V बाई 3R की करंट आ रही है उसमें से डिवाइड हो गई, दैट बिकम V बाई 3R. पहले थी V बाई 2R, अभी हो गई V बाई 3R. इसका मतलब करंट पहले से कम हो गई है, करंट पहले से कम हो गई है तो पावर डिक्रीज हो जाएगी. ए में इंक्रीज होगी और बी में डिक्रीज होगी ऑन क्लोजिंग दिस स्विच. इनिशियल केस में ए और बी दोनों में करंट, बिकॉज सी तो ओपन था, देयर वाज नो करंट इन सी. करंट इज गोइंग इन ए एंड बी एंड बोथ द करंट इज V by 2R initially. Now when we close this switch S, on closing this switch S, ये दोनों आ गए पैरेलल में, R and R, R by 2, R by 2 R के साथ सीरीज में 3R by 2. टोटल करंट जो आएगी सर्किट में, न्यू करंट I2, that will become V divided by 3R by 2, और वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, V by 3R and V by 3R. रेजिस्टेंस सेम है, करंट V by 2R से V by 3R हो गई, सो करंट इज डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस इज सेम. B में डिक्रीज होगी और A में इंक्रीज होगी. आंसर विल बी B. Right. Question number 9. The three resistances of equal values are arranged in the different combination as shown below. Arrange them in increasing order of power dissipation. अब ये तीनों में करंट सेम है. In all of them, the current entering is same. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर ज्यादा. पहले में 3R, दूसरे में R by 3, 2R by 3, और ये हो गया 3R by 2. So it is directly proportional to the resistance because I is same. So P is equal to I square R. Maximum power 1 में, minimum power 3 में. Answer is A. Right. Likewise ये कुछ simple वाले question है, ये आप homework में try करेंगे. All these questions are very important. Question number 14. अभी एक fuse वाली कहानी देख लेते हैं. What is a fuse wire, और fuse wire के लिए current और उसकी रेडियस में क्या रिलेशन है. फ्यूज वायर जो आता है अभी, फ्यूज एक छोटा सा सिलेंडर बॉक्स के अंदर कुछ छोटा सा इसमें अंदर एक वायर लगा होता है, एंड दिस इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. और वो जो अंदर वायर है उसकी थिकनेस डिसाइड कैसे होती है? उसकी थिकनेस डिसाइड होती है करंट रेटिंग से, कितनी फ्यूज, कितनी मैक्सिमम करंट उस अप्लायंस में पास हो सकती है. फ्यूज वायर का लॉजिक क्या होता है? इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ, fuse wire should have high temperature coefficient of resistivity, क्योंकि जैसे ही करंट इसमें पास हो उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए. लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही करंट ज्यादा हो it should get melted so that the circuit connection is breaks and it will provide safety from getting damaged. So alloy of tin and zinc ऐसा कुछ बनाते हैं. Alloy of tin and zinc which is used for the making fuse wire. अब इसमें लॉजिक क्या होता है? फ्यूज वायर के रेजिस्टेंस की वजह से जितनी इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी सराउंडिंग में डिसिपेट हो जानी चाहिए थ्रू इट्स सरफेस. हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि इसमें जो भी करंट आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट करंट द पावर डेवलप्ड शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शुड बी डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग. करंट जैसे ही लिमिट से ज्यादा होगी सराउंडिंग में हीट जा नहीं पाएगी बिकॉज सरफेस एरिया इज स्टिल सेम. सो दैट हीट विल स्टार्ट
getting absorbed by the material, by the wire, and wire starts melting. जैसे मेल्ट हो जाएगा, so length is L और इसकी रेडियस है R. So electrical power or electrical energy produced in the wire should dissipate in the surrounding. Dissipate in the surrounding. Surrounding में dissipate हो जाना चाहिए. So why? Because if it gets dissipated in the surrounding, so उसकी जो heat है वो बाहर निकलती रहेगी. और surrounding में dissipate होने के लिए फॉर्मूला था कुछ Ka delta T by L something. It is directly proportional to area. K is that convection constant, conductivity constant, and L ऐसा कुछ. बेटा ये समझ आ रहा है? ये कुछ 11th की कहानी थी. अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसको सिर्फ इतना लिख लेते हैं that it is directly proportional to, it is proportional to some constant times A, where A is surface area जिसके थ्रू वो हीट बाहर डिसिपेट हो सकती है. Surface area of fused wire. I square resistance होता है rho times L by A is pi R square is equal to K और surface area होता है 2 pi RL. बाकी सारा तो कांस्टेंट है. रो इज रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एल तो कैंसिल आउट हो गया. आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. I is proportional to R to the power 3 by 2. The current passing through this resistor will be proportional to R to the power 3 by 2. एक सेकंड बेटा. So अगर ज्यादा करंट घर में आने वाली है, I is more, तो उसके हिसाब से हमें ज्यादा थिक वायर यूज करना चाहिए. That radius of the wire should be more accordingly, right? So this is the relation अगर between कम आ रही है तो पतला वायर लगा लो, चलेगा. जैसे पहले क्या करते थे, फ्यूज उड़ गया तो घर में ही कनेक्ट कर लेते थे. एक छोटा सा एक वायर निकाला, उसको ऊपर से पील करके. बट हर अप्लायंस के अंदर, एसी के अंदर, फ्रिज के अंदर, सबके अंदर अपना फ्यूज लगा होता है. और उस फ्यूज वायर के अंदर जो थिकनेस होती है, दैट थिकनेस डिसाइडेड बाय द करंट. करंट ज्यादा है तो उसकी रेडियस ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंगली. अगर करंट डबल आ रही है किसी अप्लायंस में, सपोज एक छोटा सा इन्वर्टर है और इन्वर्टर की जगह पे एक एसी है, और दोनों के फ्यूज को कंपेयर करोगे, फ्यूज वायर को, तो इन्वर्टर में करंट जाती है कुछ 7-8-10 एम्पियर के आसपास. एसी में करंट जाती है 15 एम्पियर की. Accordingly, the fuse wire thickness should be more because I is proportional to R is to power 3 by 2. One next type of question. So question is that अगर हमारे पास दो हीटर हैं सपोज घर में, पहले हमने फर्स्ट हीटर को यूज किया. If first heater takes T1 time to boil some certain quantity of water, 10 मिनट 5 मिनट कुछ भी, T1 time to boil certain quantity of water. अब उतना ही पानी लेके दूसरे हीटर से ही बॉयल करना स्टार्ट किया. एंड द सेकेंड हीटर टेक्स T2 टाइम. Second heater takes T2 time to boil the same amount of water. Water तो boil हो चुका है, दूसरा same amount of water. So इस difference क्यों है? Because obviously their power will be different. दोनों की पावर रेटिंग डिफरेंट है, दोनों की पावर डिफरेंट है, इसलिए दोनों को टाइम अलग अलग लग रहा है. नाउ if the same water is boiled by using their series combination, if the same quantity of water
is boiled by using first case their series combination, second is parallel combination. Find the time taken by this combination to boil the same amount of water. Series combination and second is parallel combination to boil the same amount of water. So boil करना मतलब उसको temperature 100 डिग्री तक लेके जाना. So that means it is a certain fixed amount of heat. Suppose water को boil करने के लिए हमें heat चाहिए Q. This quantity of water requires Q amount of heat और electrical heater से हम इसको heat कर रहे हैं. So suppose if power of first heater is P1. फर्स्ट हीटर जो हमने यूज किया है उसकी पावर है P1, टाइम टेकन इज T1, so heat required is power into time. Q is the heat required to boil that amount of water. Heat required to boil water. And similarly second जो heater है अगर उसकी power है P2, if power of second heater is P2, then Q is equal to P2 times heat. So now if we are using their series combination, P1 and P2, so इसका जो P equivalent होगा उससे time लगता है T. Suppose the equivalent heater takes time capital T to boil the same water. So अगर हम इसकी power equivalent power निकालें, then heat Q is given by the equivalent power P equivalent into T. Time कितना लगेगा? Q by P equivalent. Now for series combination, P equivalent कितना था? For series 1 upon P equivalent is 1 upon P1 plus 1 upon P2. So this becomes Q. 1 upon P equivalent is 1 upon P1 plus 1 upon P2. Q by P1 plus Q by P2. Q by P1 पहले वाली इक्वेशन से आ जाएगा T1 और Q by P2 आ जाएगा T2. तो अगर पहले ने 5 मिनट लिए, दूसरे ने 10 मिनट लिए, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगा देते हैं तो हमें 15 मिनट लगेंगे उसी सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने पे पावर कम हो जाता है, सो ऑब्वियसली टाइम टेकन विल बी मोर, राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट इज अगर हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं. सपोज इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी मेथड सेम ही है. टोटल इक्विवेलेंट पावर, so total time taken by this equivalent combination, T is equal to Q by P equivalent. पैरेलल में कनेक्ट करने पे पावर हो जाता है P1 plus P2, so it become Q divided by P1 plus P2. अब हम क्या करेंगे, P1 को लिख लेंगे Q by T1 और P2 को लिख लेंगे Q by T2, because we had these two relations. Q is P1 T1 and Q is equal to P2 T2. So from this equation Q cancel out हो जाएगा, LCM ले लो, T1 T2 divided by T1 plus T2. That becomes the equation of the time, right? Understood?
पैरेलल में कट करने पे टाइम कम लगेगा. सो अगर सपोज वो पहले 5 मिनट्स और 10 मिनट्स लेते थे, नाउ इट विल टेक हाउ मच? 5 into 10 by 15, 10 by 3 यानी 3.33 सेकेंड. So time taken by the parallel combination will be less क्योंकि दोनों की पावर ओवरऑल इंक्रीज हो गई. So ये हमने पावर वाले ऑलमोस्ट नहीं सारे केसेस कर लिए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर. सो एक बार रिवाइज करके आना. Wheatstone bridge. In tomorrow's class, we will finish this chapter. Meter bridge, potentiometer are the two practical circuit that's left in this chapter. Otherwise, everything is done. और हम साथ में sufficient question practice करते हैं, but that does not mean कि आपको practice नहीं करनी है. You have to do SL Aroda along with this class and NCRT, and you have to attend the AP Sir's class for the revision purpose. और डीपीबी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको करने होते हैं. जो हम क्लास में करते हैं वो रिवीजन के टाइम दोबारा सॉल्व करना है, और जो बचे क्वेश्चन है दैट इज इन होमवर्क. राइट, सो विल कंटिन्यू टुमारो एंड विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो. प्लीज रिवाइज द Wheatstone bridge and all those concepts so that we can do it, we can finish